For those who wish to make a donation, I'll be sharing the bank account details after this. Moving on, currently PDM is working on several projects for the growth and progress of our youth. And we have a trio institution with us which provides online courses all over Pakistan for 3 months and 6 months. There are several courses they offer, such as graphic designing, freelancing, digital marketing, and a lot more. Our today's session is on graphic designing. For that, our today's guest speaker is Fahad Azhar. First of all, thank you very much, Fahad, for volunteering and taking out time to share your valuable experience with us. Fahad, could you please introduce yourself? Ji, Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all doing well. First of all, please let me know if my voice is audible to you guys, and then inshallah I'll start. Yes, So, it is audible. okay. I'm sorry for the background noise, but unfortunately it is the only place where I can conduct the session at the moment. So, thank you so much for inviting me for this amazing session for the youth and in collaboration with Volunteers Power Pakistan, I guess, and the Tehran Institute, and I guess some other organization are also involved in this one. So, I'm Fahad Azhar. I have around about 6 years experience in this domain, and I am actually a brand strategist. So my task is usually to create strategy for the brands from scratch till end in terms of only visuals, in terms of the graphics, in terms of you can say in terms of the motion graphics, the videos, and the websites and the logo part and the social media thing and every. If you want to speak, if yes, then I can stop myself. So you can raise your hand, then inshallah we'll do some session for it. So if somebody want to speak, so let me know. Okay, I think it was some mistakenly from the Shayan Khan. Okay, so I think everyone has joined. If not, then let me know, Haris. So right now I'm working with the UAE's number one bank that. You are muted. I'm muted. Okay. I'm sorry. So I was telling you that as per my experience, I have around total around 6 year experience system in this domain. At the beginning in 2018, the e-commerce industry of the Pakistan, and after that I moved. I worked with the United States company. It was a insurance agency, and insurance agency has also some other domains as well, auto insurance, family insurance, health insurance, XYZ things. And after that, I worked with a media agency of the United States, and I was directly in touch with the CNN, BBC, Yahoo News, and few other agencies of the United States. And after that, I moved to the UAE. So I worked with the property sector initially, and right now I'm working with the banking sector at the moment. So it has been total around the 6 year experience is my domain. So I started with the thing that as per my qualification, I am electrical engineer. As you know, guys, पूरे पाकिस्तान में आजकल यही सीन चल रहा है कि everybody, almost 80%, 90% people don't know what they want to do in their career. तो सेम केस मेरे साथ भी था ऐसे ही. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो जब मैं इंजीनियरिंग में ही था तो मैं अपनी क्लासेस से ज़्यादा जो साइकोलॉजी में जो मुझे इंटरेस्ट होता था, तो आई लाइक टू यूज़ विद द पीपल्स माइंडसेट. और फिर वहाँ से फिर मुझे हुआ कि यार व्हाई नॉट टू सेल माय प्रोडक्ट्स टू द पीपल, कि जो लोग जो मेरी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो इन टर्म ऑफ विजुअल्स के साथ मुझे थोड़ा सा प्ले करने का शौक हुआ. सो फिर वहाँ से स्टार्ट लेते लेते फिर मुझे पता चला कि अच्छा जी, कोई एडोब फोटोशॉप भी कोई चीज़ होती है, एडोब इलस्ट्रेटर भी कोई चीज़ होती है, तो हम इसके थ्रू कुछ विजुअल्स हम बना के तो हम अपने ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके साथ कुछ एड्स हम रन करके तो अपनी प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर सकते हैं. सो फिर वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ कोर्सेज किए, फिर मैंने खुद भी सीखा, मैंने अकेडमी से भी सीखा, मैंने ऑनलाइन भी सीखा. तो अराउंड अबाउट ऑलमोस्ट 11 कोर्सेज जो हैं वो मैंने इस फील्ड में किए. फिर उसके साथ साथ जो है वो मैं शिफ्ट हो गया स्लोली जो मोशन की साइड पे. मोशन ग्राफिक्स थिंग्स, वो भी उसका प्रोसेस भी कुछ ऐसे ही होता था कि स्टैटिक बनाने के बाद या तो एक ये उसमें था. फिर देन वीडियोस की साइड पे, तो ये जो मेरी कंप्लीट जर्नी रही इस चीज़ में. सो बताने का मकसद ये कि
जो मेरी मोटिवेशन थी वो साइकोलॉजी थी, वो साइकोलॉजी के बाद मार्केटिंग था, तो मार्केटिंग के अंदर भी फिर विजुअल्स थे, जो कि स्टैटिक विजुअल या नॉन स्टैटिक विजुअल वो दोनों चीज़ में आ जाते हैं। तो आई डोंट नो कि अगर आप लोग इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक आप लोग कभी कहीं ना कहीं बिल्कुल 1% भी आई थिंक कुछ स्लोली हल्का सा भी कुछ इंटरेस्ट होगा इस साइड पे कि यार यू वांट टू लर्न अबाउट व्हाट ग्राफिक डिजाइन इज, ठीक है। और मुझे आज जो इनविटेशन मिली वो भी यही चीज़ बताने के लिए मिली कि एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन में कौन कौन सी डोमेन्स आती हैं, कौन सी सब डोमेन्स आती हैं, हम इसके थ्रू हम कैसे अर्निंग हमारी हो सकती है, या इसके थ्रू हम फ्रीलांस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग जॉब करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक मुझे नहीं पता कि आई थिंक मोर देन 100 पीपल आर देयर इन आवर वर्कशॉप, सो आई वुड लाइक टू मेक दिस वर्कशॉप मोर इंटरेक्टिव अदर देन कि मैं इसको एज अ अपनी साइड से ही बोलता जाऊँ, मुझे कोई आप लोग के सवाल सुनने का मौका ना मिले। आप लोग भी इस चीज़ में जो है वो मेरे से पार्टिसिपेट करें ताकि जितने मैक्सिमम हो सके क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस कर सकें। तो What is your name? सॉरी, What is your name, sir? माय नेम इज फहद। Okay, sir. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट आपके जो सवालात हैं वो आप सेशन के आखिर में पूछ सकते हैं, और प्लीज काइंडली सब अपने माइक म्यूटेड रखें ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फहद यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये अभी तक की थी जर्नी, ठीक है जी। तो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है यार, आई एम रियली सॉरी, आई एम एट द कॉफी शॉप एट द मोमेंट, सो ये इट्स म्यूजिक फाइन। या थैंक यू सो मच। सो हल्का सा आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा बिकॉज म्यूजिक इज नॉट इन माय कंट्रोल एट द मोमेंट, सो ये सारी बात है। अच्छा, सेकेंडली अगर मैं यहाँ से स्लोली मैं आपको जो कंप्लीट एक ग्राफिक डिजाइन तक की जर्नी होती है मैं उस तक आपको लेके चलने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई सवाल आता है बनते तो प्लीज अपने पास लिख लीजिए, तो एट द एंड हम लोग एज पर द होस्ट एडवाइस तो हम उसको एंड में एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो अलीहा, आई थिंक आप कुछ कहना चाह रहे हैं या क्या बात है आपकी, प्लीज कह सकते हैं आप। ओके, आई थिंक इट वाज सम मिस्टेकन एरर। तो अब ये सारा प्रोसेस है। अब जहां तक ग्राफिक डिजाइन की बात है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्राफिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअली डिजाइन में ग्राफिक में थोड़ा सा फर्क है। ग्राफिक डिजाइन इटसेल्फ एक टर्म है, फिर अगर इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करें तो ग्राफिक प्लस डिजाइन, ठीक है, ये हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं। जो ग्राफिक का प्योरली मतलब है, अब अगर उसकी भी आप सब डोमेन्स पे चलते हैं, जो हमारे पास वेक्टर एलिमेंट्स होते हैं, जो मोस्टली, चले मैं एक बिल्कुल लेमैन टर्म आपको बताता हूँ कि जिस तरह से कार्टून्स आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो कार्टून इज अ वेक्टर एलिमेंट। एक होता है हमारे पास वेक्टर एलिमेंट, एक होता है हमारे पास रास्टर एलिमेंट। अगर थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपको बताऊं, अब एक टर्म आप यूज करते हैं यार कि भाई ये मेरी पिक्चर फोन से ले लो, कैमरा से ले लो, पिक्चर ले लो मेरी, ठीक है। तो पिक्चर एक हद तक जूम इन हो सकती है, चाहे आप लोग 1000 मेगापिक्सल कैमरा भी यूज कर रहे हो या 1 लाख मेगापिक्सल कैमरा भी यूज कर रहे हो, तो एक हद आएगी कि उसके पिक्सल्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, पिक्सल उसके थोड़े से फटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो वेक्टर होता है, वेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेक्टर इज अ थिंग जिसको आप इनफाइनाइट टाइम जूम कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकली हम ग्राफिक जिसको बोलते हैं वो वेक्टर्स को बोलते हैं, ओके। जो पिक्चर्स होती हैं उनको हम इन टर्म ऑफ द ग्राफिक डिजाइन हम उसको बोलते हैं कि ये रास्टर चीज है, RASTER, ठीक है, रास्टर इसको बोलते हैं। अच्छा, अब जो ग्राफिक्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास वेक्टर एलिमेंट। वेक्टर कहाँ पे बनते हैं? वेक्टर फोटोशॉप पे बनते हैं, वेक्टर इलस्ट्रेटर पे बनते हैं, वेक्टर एडोब की जो भी आप प्रोडक्ट उठा लें, एडोब XD उठा लें, एडोब डिजाइन उठा लें, सब पे हम लोग वेक्टर्स बना सकते हैं, ओके। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे ग्राफिक डिजाइन पे। हमारे पास डिज़ाइन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डिज़ाइन है कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। एक देखो, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होता है। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन यूज़ करते हैं जो पेंटर्स होते हैं, उनको आप बहुत सारे पेंट्स दे दो या जो भी एक पेंट दे दो, एक ब्रश दे दो, तो आपको कुछ ना कुछ वो चीज़ बना के दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद विंटेज डिज़ाइन आते हैं, रेट्रो डिज़ाइन आते हैं, बहुत सारी फील्ड इसकी बनती हैं ओनली अगर सिर्फ आप डिज़ाइन को उठा लो तो, ठीक है। फिर उसके अंदर फैशन का भी आ जाता है, सब कुछ आपकी अपीयरेंस डिज़ाइन भी आते हैं, शर्ट डिज़ाइन आ जाती हैं, वो सब चीज़ें आती हैं, बट वो सब चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइन है, अगर इसके लिए अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, टूल्स की बात करूँ, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जो कि ऑनलाइन भी यूज़ होते हैं, बहुत सारे आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बट प्रोफेशनली
हम लोग जो टूल्स यूज करते हैं वो होते हैं एडोब, ठीक है। एडोब के अंदर अगर आप चलें तो एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब एक्सडी, एडोब इंडियन, ये कुछ टूल्स होते हैं जो हम लोग यूज करके अपना ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अगर एडोब इलस्ट्रेटर की आप बात करते हैं, फोटोशॉप की, ये कहाँ से डाउनलोड होंगे? बहुत सारे लोगों के पास जो है वो पेड एक्सेस नहीं होती कि वो पेड वर्जन्स को परचेज कर सकें और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकें। आई होप कि बहुत सारे जो लोगों के पास अभी हमारे जो ऑडियंस है या इसके अलावा भी उनके पास विंडोज सिस्टम होंगे, ठीक है। तो विंडोज सिस्टम में आप इजीली पायरेटेड जो चीज़ होती है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई रिक्वेस्ट टू द होस्ट टू मेक अ ग्रुप और whatever she wants to like। उसके अंदर ये होगा कि जो हमारे पास ये होगा ना कि जो आई मीन उस वेबसाइट पे जो लिंक होगा जहाँ से इजीली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो सकते हैं वो मैं उसके अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ले सकते हो। मैं आपको वर्बली भी बता सकता हूँ getintopc.com, GET-INTOPC.com। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जाके कोई भी आपको परचेज करने वाला वर्जन अगर मिलता है तो यहाँ से इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही एडोब के लिए भी आप लोग वहाँ से जाके एडोब की कोई भी प्रोडक्ट इजीली डाउनलोड कर सके, उसका डाउनलोडिंग जो इंस्टॉलेशन उसका जो प्रोसेस होता है वो साथ में बताया होगा इन टर्म ऑफ वीडियो। आप वीडियो चाहे ऑनलाइन देखो, डाउनलोड करो, उसका आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक मैक की बात है तो मैक के अंदर ये जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज मैक जो पायरेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको अलाउ नहीं करता, तो इसलिए उस साइड पे जो है ना वो आपको हल्का सा प्रॉब्लम होगा जो मैक के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं मैं वो ओपन करना चाहूँगा ताकि स्लोली स्लोली मैं आपको लेके चलूँ साथ साथ। और लेट मी नो होस्ट प्लीज, अगर तो स्क्रीन मेरी आपके साथ शेयर होती है तो प्लीज मुझे आप बताइए, तो देन इंशाल्लाह ओपन माय स्लाइड्स। तो ये मैंने स्लाइड्स ओपन की है तो आई होप कि ओपन हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो यस, आप ओपन हो गया, ओपन। हो ओके रही है आपकी शो। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्लाइड्स आई थिंक ये है जी हमारे पास। ओके, सो इट वाज माय इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। इल्म क्या होता है, स्किल क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्किल जो आपके पास होता है वो कोई हुनर होता है, ठीक है। इल्म आपके पास बहुत सारी रैंडम चीजें भी हो सकती हैं बट स्किल आपके पास कभी रैंडम नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास जो स्किल होता है वो एक ऐसा हुनर होता है कि जो आपके अंदर यूनिकनेस शो करता है कि यार आप उस बंदे से यूनिक हो क्योंकि आप एक स्किलफुल पर्सन हो या आपके पास XYZ स्किल है। उस स्किल के साथ आप लोग कुछ भी अर्निंग प्रोड्यूस कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। अगर एक बंदे को सिंगिंग आती है तो इट मींस ही इज अ स्किलफुल पर्सन, ठीक है। अगर एक बंदे को डिजाइनिंग आती है तो इज अ स्किलफुल पर्सन। कोई बंदा टीचर है या कोई बंदा इंजीनियर है तो उसके पास वो स्किल है जो उसने सीखा है, ठीक है, जो उसने प्रॉपर उस चीज के ऊपर एफर्ट लगाई है और उस चीज को उसने अडॉप्ट किया है, उसने बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिए हैं, बहुत सारा खुद को उसने जो है वो क्या आप कह सकते हो कि एक्सप्लोर करके और उसने खुद के अंदर वो चीज़ एब्जॉर्ब की है कि यार मुझे ये हुनर सीखना है। उसने एफर्ट की, XYZ चीज़ें की, उसके अंदर हुनर आ गया। जबकि इल्म क्या होता है कि इल्म कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आपको पता है कि यार अभी टाइम ये हो रहा है, ठीक है, सपोज के पढ़े मैं कौन सी ऐसी एग्जांपल दूं इल्म की कि मतलब एक स्किल के अलावा जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है, वो आपका इल्म होता है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं आगे। ग्राफिक डिजाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन, मैंने हल्का फुल्का आपको करने की कोशिश की है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है, टूल्स प्लस सर इम्प्लीमेंटेशन। इसके वाले से काइंडली दोबारा बताएंगे आप? ग्राफ और डिजाइन थोड़ी समझ नहीं आ रही तो मैंने नहीं सुना। ओके ओके ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि जो ग्राफिक डिजाइन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें से जो सबसे आप एक बात याद रख लें, जहाँ पे वेक्टर एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हुए, ठीक है, ये फोटो मैनिपुलेशन या इस तरह की चीजें हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो है ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। जबकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं, उसका हम लोग ग्राफिक डिजाइन नहीं कह सकते। जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो अपने फैशन अपीयरेंस को डिजाइन करते हैं, उसको हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये स्लाइटली एक इनिशियल सी एक वो मैंने आपको एक हिंट दी है, इससे आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है या डिजाइन की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं। इसके अंदर टूल्स के लिए मैंने आपको बता दिया
कि एडोब की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी भी इसमें टूल्स होते हैं, बहुत सारे लोग कैनवा यूज़ करते हैं, एक ऑनलाइन ईजी टू यूज़ है, प्लग एंड प्ले टाइप चीज़ है, ऑलरेडी टेम्पलेट्स होती हैं, टेक्स्ट चेंज किया, पिक्चर चेंज की तो आपके सामने एक पोस्टर बन के आ गया। बट अगेन अगर आपको प्रोफेशनली चलना है तो आपको प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करते होंगे, जो कि जस्ट एक एडोब की प्रोडक्ट्स ही हमारे पास बनती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन इस सारे काम की कैसे होती है। सपोज एक बंदा अगर आपको ऑर्डर देता है कि भाई साहब मुझे एक लोगो डिजाइन करके दे दो, ठीक है। लोगो एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो हर बंदा बहुत इजी लेता है कि यार लोगो क्या है, वो तो हम सिर्फ एक एस लिखेंगे या पी लिखेंगे या जी लिखेंगे, एक टांग इधर खींचेंगे एक टांग उधर खींचेंगे तो लोगो बन के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। एक बाजू उसको ऊपर कर दो, हल्का सा सर यूं कर दो तो लोगो आ गया हमारे पास। ठीक है, एक मतलब उसकी शेप बन गई, जबकि ऐसा नहीं है। आई फील, मुझे भी तक अपने जो 5-6 साल में जो मुश्किल पेश आई वो लोगो डिजाइन के साथ ही आई है कि लोगो इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द डिजाइन, because logo involved a complete psychology, a complete process, complete thinking, complete marketing thing, everything of the brand in a single element, जो कि जिसको हम लोगो बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। अभी मैं ओपन करता हूँ स्क्रीन, तो आप उसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो लोगो होता है उसके अंदर कितनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कुछ ब्रांड गाइडलाइंस है, इसमें मैं जस्ट ये एक ओपन करता हूँ और इसको जो मैंने टाइटल दिया वो ब्रांड बुक। ब्रांड बुक मीन्स कि एक कंपनी है, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रॉपर्टी की कंपनी है, उसका एक ऑर्डर आया कि भाई हमें ब्रांडिंग करवानी है। ब्रांडिंग का मतलब ये उनसे था कि भाईजान हमें एक लोगो बना के दो, उस लोगो के अंदर वो लोगो कुछ मीनिंग रखता हो। वो क्या मीनिंग रखता हो, वो 6 फैक्टर्स उन्होंने बताया मुझे। ठीक है, एक उनका कुछ था यार, इसके प्रॉपर्टी का लोगो है, उनका नाम भी पी से शुरू हो रहा था उस कंपनी का, तो उन्होंने कहा पी का सिंबल भी आना चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने कहा उसके अंदर फिश का एलिमेंट भी आना चाहिए, एक जो स्टार्टअप होता है, एक जो लॉन्च पैड होता है, ठीक है, आई मीन की जो एक रॉकेट होता है, उसका भी अंदर आना चाहिए। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि जस्ट अगर आप ब्रांडिंग की सिर्फ एग्जांपल ले लें तो इसके अंदर कितना कुछ मटेरियल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो लोगो बनाने के लिए आपको ये अगर तो प्रोफेशनली आप चलते हैं, 100% प्रोफेशनल होकर चलते हैं तो आपके सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो लोगों के अंदर जस्ट अगर सिर्फ मैं आपको हेडिंग्स बताऊं ना, तो ये आप देख सकते हैं ब्रांड डायमंड, ब्रांड रूट्स, टारगेट ऑडियंस, बेनिफिट, प्रपोज कस्टमर, कंज्यूमर इमेज, ब्रांड विजन और ये सब चीज़ें। इसके अंदर अभी डीप डाइव हम लोग नहीं करते। ठीक है, मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं डायरेक्टली उस पर चलता हूँ, जो कि है ब्रांड विजुअल आइडेंटिटी। अब लोगो एक ब्रांड का एक एलिमेंट है। ठीक है, लोगो अगर थोड़ा सा आपका खराब हो जाए तो ब्रांड की सेल्स खराब नहीं हो सकती। ठीक है, ब्रांड की मार्केटिंग कंपनी एक ब्रांड की मार्केटिंग एक अलग कैंपेन होती है, ब्रांड की विजुअल कैंपेन एक अलग कैंपेन होती है, बट आपका लोगो आपके ब्रांड पे इम्पैक्टफुल होता है। इस बात का आप जरूर एक चीज को माइंड में रखें। अगर एक ब्रांड की सेल्स लाखों अरबों में हो रही है, बट अगर उसकी विजुअल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी विजुअल्स जो है वो इतनी अपीलिंग नहीं है, एज पर द मॉडर्न ट्रेंड नहीं है, एज पर द ब्रांड स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, तो इट विल इफेक्ट इट्स सेल्स, बट उसकी सेल्स को रोक नहीं सकता। ठीक है, लोगो इज जस्ट अ सिंगल एलिमेंट, बाकी ब्रांडिंग के अंदर बहुत सारी जो है ना वो चीजें आ जाती हैं और भी। अच्छा, अब ये जो कंपनी है इन्होंने हमें ये बोला कि फिश का फैक्टर ऐड करना, बिकॉज उनका जो सीईओ है उसका एक टाइटल होता था कि फास्ट फिश ईट स्लो फिश। ठीक है, तो अब आई डोंट नो वो ये मोटो क्यों यूज करते थे, स्लोगन क्यों यूज करते थे, उनको पता होगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक और फैक्टर रखा कि जो लॉन्च पैड होता है, जो एक रॉकेट शेप में, कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो हम उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एकदम से जो है ना, मतलब उनको आरओआई मिलना स्टार्ट हो जाता है और उनकी जो सेल्स है ना वो हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो उनका एक और एक फैक्टर था कि बिल्डिंग ब्लॉक यूज होना चाहिए हमारे उसके अंदर, हमारा जो भी लोगो है उसके अंदर। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी की जो बिल्डिंग्स है ना, वो उनके अंदर जो एक ब्लॉक या ईंट या ब्रिक का जो एक एलिमेंट है वो यूज होता है। उसके बाद ये था कि उनका जो लोगो है उसको वो ग्रोथ का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, उनकी कंपनी बहुत मतलब इन टर्म ऑफ सेल्स या इन टर्म ऑफ मार्केटिंग बहुत अच्छी सेल को जनरेट करेगी, वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद ये था कि उनका एक रिबन एलिमेंट भी होना चाहिए और उनका आखिर में लेटर पी। तो ये 6 एलिमेंट जब मिलकर उनका एक लोगो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। ठीक है, और हमने जो उसको जो चीज़ बना कर दी वो ये बना कर दिया। अगर आप इस सिंबल को जस्ट आप देखते हो तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि इसमें पी भी शो हो रहा है, इसमें ब्लॉक भी शो हो रहा है, इसमें फिश भी शो हो रही है, इसमें रॉकेट भी शो हो रहा है, और जो उनका जो था ना रिबन का फैक्टर वो भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आफ्टर द वर्क ऑफ 2 वीक्स ये एक एलिमेंट हमसे बना और ये हम लोगों ने उनको प्रपोज किया, ये जिस तरह ये आपके सामने आ रहा है। ओके,
तो अब ये सारी फिर चीज़ होती है। फिर इसके बाद इसका फॉन्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। अब लोगो ऐसे नहीं यूज़ हो सकता, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, लोगो डू एंड डोंट्स आ जाते हैं, फोटोग्राफी एलिमेंट्स आ जाते हैं, शेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डिज़ाइन में। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये सब शेड्स आपके ब्रांड को कंपेल कर रहे होते हैं, या उसको मतलब एक चीज़ उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप कह सकते हो कि हमारे पास जो भी ब्रांड है, अगर वो वाइन रेड यूज़ कर रहा है, वो रॉयल ब्लू यूज़ कर रहा है, वो ब्लैक यूज़ कर रहा है, वाइट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका क्लाइंट आपको बताता है कि यार मुझे ब्लू कलर चाहिए, मुझे येलो कलर चाहिए, मुझे XYZ शेड्स चाहिए अपने ब्रांड में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आप पे छोड़ देता है। तो यहाँ पे आपकी साइंस यूज होती है कि आप इसको किस वे में लेकर चलते हो या कितना अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट आउट करते हो, ठीक है। अगर इफ आई टॉक अबाउट द कलर साइकोलॉजी, तो इट्स अ लॉन्ग गेम। वो ऐसे है कि हर एक शेड एक अपना अपना एक उसकी उसकी कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो होते हैं या बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं, वो अपना शेड ब्लू यूज कर रहे होते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है? ब्लू रिप्रेजेंट ट्रस्ट, ठीक है। अब जैसे फेसबुक है, वो ब्लू यूज करता है क्योंकि फेसबुक आई थिंक इस टाइम जाइंट है। जाइंट इन टर्म ऑफ क्या है, उसके पास बहुत सारा ऑलमोस्ट 90% वर्ल्ड 99% वर्ल्ड का डाटा है। उसकी पिक्चर्स हैं, उसका एड्रेस है, उसके कार्ड्स हैं, उसके जो भी रोज उसकी एक्टिविटी हो रही है, सब चीज़ें ट्रेस हो रही है। तो उसके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इस टाइम पे, जो कि ब्लू शेड यूज करके थोड़ा सा इम्पैक्टफुल है कि यार कि आवाम को उसके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप फिर देख सकते हो, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम यूज करता है शेड्स ऑफ ऑरेंज, येलो, रेड, ठीक है। वो क्यों यूज करता है? क्योंकि ये सब चीजें इंजॉयमेंट, जॉयफुल लाइफस्टाइल, इस चीज का हल्का सा इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप उस चीज को उठा लो कि जो हमारे पास बनती हैं, आप क्या कह सकते हो, एक सेकेंड, ब्लैक है शेड, ठीक है। अब ब्लैक शेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास ब्लैक शेड रिप्रेजेंट्स द लग्जरी, सोफिस्टिकेटेड फील, एक एलिगेंसी शो करता है। मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो अबाउट द गर्ल्स, बट जो बॉयज होते हैं, अगर इस सेशन में बहुत सारे बॉयज होंगे, वो ब्लैक ड्रेस या व्हाइट ड्रेस को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? ठीक है, या तो फुल ब्लैक पहनेंगे ईच एंड एवरीथिंग, या तो फुल व्हाइट पहनेंगे, ठीक है। अब एज पर माय थिंकिंग, जो मैं खुद जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये है कि व्हाइट एंड ब्लैक शेड आर द मोस्ट एलिगेंट, आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, आर द मोस्ट लग्जरियस शेड्स फॉर द बॉयज, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्टफुल करता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द बॉयज वियर ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अगर सोचें कि आप लोग जो रोज जो भी अपीयरेंस आप करते हो, जिस शेड में आप चलते हो, तो आपकी कंप्लीटली पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। मोस्टली बॉयज होते हैं वो बहुत हल्का सा खूबी पेट्स पहनते हैं जिसमें थोड़ा सा फ्लावरी टच आ रहा होता है, ये वो। तो अल्टीमेटली कंप्लीटली उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ स्टाइल, तो कंप्लीट एक चीज़ है, बंदे को देख के समझ आ जाती है कि यार इस बंदे के माइंड में ये सारी जो साइकोलॉजी है वो चल रही होती है, ठीक है। सेम इज विद द गर्ल्स। अगर Hello. Hi, Fahad. हाय, Thank you so much for the session. I just wanted to ask you a question over here, and if it is like answerable enough. So, as you're talking about the logo, and since you are evolving the psychological factors also, so where do you think that what sort of psychological factors you should keep in mind while designing the logo? I mean, कैसे फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए, एक ये क्वेश्चन है. एंड सेकेंडली, for example, if it is a brand and who wants to evolve or change the logo with a span of time, right? They want to evolve or change their logo. Is it like fruitful? मतलब वो ठीक होगा? तो मुझे इन दोनों चीजों पे I would be asking your question, asking your आपके क्या इसके बारे में है? Thank you. any other question please? No. Thank you. It's just these two questions. Okay, no, from any other candidate, any other person, if you want to ask questions, so please पूछ लें, फिर एक साथ ही मैं आंसर कर देता हूँ. Okay, इस बार में कोई क्वेश्चन नहीं है हमारी. ओके, थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन का. अच्छा, आई थिंक जो मुझे फर्स्ट एक चीज़ समझ आई कि वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनको हम लोग सामने रख के लोगों की साइड पे जाते हैं या उस चीज़ को हम लोग डिज़ाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट ऑफ फैक्टर जो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं वही सजेस्ट करूँगा आपको. फर्स्ट थिंग इज कि आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है,
और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आपको स्पून फीडिंग करते हैं कि भाईजान मुझे ऐसा लोगो चाहिए, ये सैंपल्स हैं, यही शेड्स यूज करने, यही फॉन्ट यूज करने हैं, ऐसा ही बनाना है, कार्टून बना दो, बैट बॉल बना दो, लोगो बना दो, पी को यूं कर दो, ए को यूं कर दो. सो आई एम नो वन कि जो मैं उसको बोलूं कि नहीं सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आपको मैं अपनी मर्जी से ही बना के दूंगा. फर्स्ट थिंग, ठीक है, आपको क्लाइंट को फॉलो करना है क्योंकि वो आपको पे कर रहा है आपकी सर्विस के अगेंस्ट. अगर क्लाइंट सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा कि यार देखो फहद, आई हैव अ प्रॉपर्टी कंपनी, आई हैव अ स्पोर्ट्स कंपनी, आई हैव अ ई-कॉमर्स कंपनी, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा ब्रांड है, इसका लोगो आप बना के दो. अब उसके अंदर कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर यूज करना है, जो भी मुझे क्वेश्चन आया वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उसको देखते हो कि ब्रांड को स्टडी करते हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स ये ऑफर कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, किस वे में कर रहा है. ठीक है, अगर तो उसकी प्रोडक्ट कोई ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा लग्जरियस है या बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल को मीट कर रही है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा. वन थिंग, अगर कोई फैशन ब्रांड आपके पास आ रहा है, वो कहता है यार मुझे लोगो बना कर दो. अगर आपने कभी कोई ऐसा फैशन ब्रांड, चले मुझे एक बात बता देंगे, एक ऐसा ब्रांड है कि जिसकी शर्ट जो है ना 50,000 की है सपोज, ठीक है, 50,000 PKR की है, और उसका लोगो जो है ना वो कार्टून बना हुआ है या और की ऐसा उसका एलिमेंट है, वो की मैच कर रहा है आपस में, उसकी 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 एलिगेंसी मैच कर रही है. ऑन द अदर हैंड एक ब्रांड है, एडिडास है, नाइक है, बॉस है, ठीक है, या उसके अलावा और भी आप ले लें, उनकी शर्ट भी सपोज 50,000 की है, उनके लोगों को आप देखें और अपने उस ब्रांड की वर्थ को देखें तो वो आपको चीजें मैच करती हुई दिखाई देती हैं. ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं फॉन्ट्स का. अपने फॉन्ट्स सेलेक्ट करनी है. फॉन्ट्स की भी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, फॉन्ट्स के बहुत सारी टाइप होती हैं. मेजर टाइप सेरिफ, सैंस सेरिफ. अब सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ में ये फर्क होता है कि एक के अंदर फ्लैट फॉन्ट्स होते हैं और एक फ्लैट नहीं होते. फिर कुछ हैंड रिटन फॉन्ट्स होते हैं, कैलीग्राफिक फॉन्ट्स आपके पास आ जाते हैं, फिर कुछ विंटेज फॉन्ट्स आपके पास आते हैं, रेट्रो फॉन्ट्स आते हैं. तो ये इटसेल्फ इज अ कंप्लीट लेक्चर अबाउट द फॉन्ट्स. ठीक है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द ये जो भी ऑर्गेनाइजिंग है आपके, कि अगर वो कोई एक सेशन मुझे दे दें जिसमें प्रॉपर में या तो मैं आपको शेड समझाऊं, या तो मैं आपको लोगों की सिर्फ उसका जो प्रोसेस बताऊं, या फिर मैं आपको ये जो सब जो साइकोलॉजी होती है उस चीज़ के बारे में बताऊं. अभी जस्ट मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट बता रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट हैव 45 मिनट टू कैप्चर ऑल दीज थिंग्स. अच्छा, फॉन्ट की अपनी जुबान होती है, ठीक है, उसके साथ साथ फिर आप ब्रांड को अगेन देख के उसके अकॉर्डिंगली आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हो. फॉन्ट सिलेक्शन कैसे करते हो? अगेन कुछ आपके पास फॉन्ट्स की टेक्निक्स होती हैं, फॉन्ट की भी साइकोलॉजी होती है, उसको फॉलो करते हुए. ओके, फिर उसके बाद आते हैं आप शेड्स पे कि आपको शेड कौन सा ऐड करना है. तो अगेन मैं वही आपको एक बात बताऊं कि जो ब्रांड शेड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि अगेन के ब्रांड से लाइफस्टाइल ब्रांड है, लग्जरियस ब्रांड है, क्या कोई स्पोर्ट्स ब्रांड है, या कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, कोई फैशन अपीयर है, कोई ई-कॉमर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप लोग शेड्स भी लेके चलते हो. ओके, इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी एक ऐसा एक फैक्टर होता है कि जिनकी टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है. अगर एक अपार्टमेंट भी आप बुक करते हो तो उस अपार्टमेंट की भी प्राइस जो है ना वो लाखों में होती है, या आजकल तो लाखों से भी ज्यादा की होती है. तो आप एक सोच सकते हो कि यार एक येलो कलर का एक फॉन्ट या येलो कलर का एक ब्रांड जो प्रॉपर्टी बेच रहा हो, ठीक है, उसकी पूरी ब्रांडिंग उसी शेड में हुई हो, या एक सी ग्रीन में हुई हो, सी ब्लू में हुई हो, ठीक है, तो आई थिंक हमें नहीं मिलता इस तरह का आजकल की ब्रांड. अगर कोई मिलता है तो आई डोंट नो किस ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है. मोस्टली आजकल जो इस तरह हाई टिकट वैल्यूज जो कंपनीज होती हैं वो क्या फॉलो कर रही है, मैट ब्लैक कलर, मैट गोल्ड कलर, या फिर जो प्लेन वाइट कलर होता है इसके साथ फॉलो कर रही है. ठीक है, तो अगेन ये जो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, अगेन वही बात आती है कि साइकोलॉजी वाली. ठीक है, तो अब ये सारा फैक्टर है. सेकंड थिंग, जो भी मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मुझे वो याद नहीं है कि वो क्या क्वेश्चन था, but evolving of logo. Fahad, it was evolving of logo. Like you want to change your logo. perfect. It's a nice question. Apple जब स्टार्ट हुआ था 1977 में, आई गेस 80 में स्टार्ट हुआ था. उस टाइम पे अगर आप उसका लोगो देखें तो एप्पल का लोगो क्या था, जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, वो ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था, तो उसके ऊपर जो एप्पल आके गिरा तो उसने वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वो जो सब फैक्टर एक इम्प्लीमेंट हुआ था, तो एप्पल ने उसी चीज को अपना लोगो रखा हुआ था. ठीक है, नाम तो एप्पल था बट उसको लोगो वो वाला था, वो पूरी पिक्चर एक थी. अगर वो मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा. इट वाज देयर इन माय स्लाइड्स, बट अभी वो मेरे पास स्लाइड्स नहीं है जो ऑफन मैं स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करता हूँ. अच्छा, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने इस चीज को चेक किया कि यार उनकी मार्केट थोड़ी सी स्ट्रांग होती जा रही है, कल्चर चेंज होता जा रहा है, इंडस्ट्री इवॉल्व करती जा रही है, तो उन्होंने अपने लोगों को मजीद सिंपल कर दिया और एक एप्पल बना दिया जो कि मल्टीपल शेड्स में था. ठीक है, उसके अंदर कोई ब्लू शेड्स आ रहे थे और एक दो और शेड्स आ रहे थे. फिर आफ्टर 3-4 साल बाद उन्होंने फिर से लोग अपने चेंज कर दिया. था तो एप्पल ही,
अभी जो शेड में एप्पल ही था बट उसके शेड्स चेंज करते जा रहे थे वो लोग, ठीक है। फिर उन्होंने उसको रेनबो शेड कर दिया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद 1990s में आके वो लोग वाइट शेड पे शिफ्ट हो गए, फिर ब्लैक किया, फिर वाइट किया, अब फिर ब्लैक है उसका, ठीक है। तो ये अगर आपको टाइम मिले तो उसका एप्पल लोगो एवोल्यूशन इवोल्यूशन उसका प्रोसेस वो सब चीजें ज्यादा सर्च कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो कंपनीज अपनी ब्रांडिंग के साथ साथ अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ ब्रांडिंग को चेंज करती हैं। सेम इज एग्जांपल ऑफ पेप्सी, ठीक है। पेप्सी की अगर आप एग्जांपल ले लें, पेप्सी का लोगो कहाँ से शुरू होता, आज कहाँ पे है। सेम इज एग्जांपल विद कोक, ठीक है। इस तरह के जो बिग ब्रांड्स हैं उनके आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो लोगो इज आई थिंक द मोस्ट मुश्किल चीज इन द होल ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन की जो सब कैटेगरीज हैं वो बनती हैं 107 107 सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनमें लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन आ जाते हैं, होल्डिंग डिजाइन आ जाते हैं, टी शर्ट डिजाइन आती हैं, उसके अलावा बहुत कुछ आ जाता है, वेबसाइट डिजाइन आ जाती है इसके अंदर, वेबसाइट बैनर डिजाइन आ जाते हैं, मेटा गूगल एड डिजाइन आ जाते हैं आपके पास, मॉल कियोस्क डिजाइन आ जाते हैं, फिर होल्डिंग डिजाइन बनते हैं, पोस्टर। मैं अब 107 चीजों के नाम अभी ले नहीं सकता और ना ही मुझे इतनी ज्यादा याद है। तो इसमें से जो एक बंदा है आई थिंक वो 4 to 5 चीजों पे ही उसकी ग्रिप बन सकती है, ठीक है। उसमें से भी जो जिसको मैं सबसे मुश्किल चीज समझूंगा वो ये ब्रांडिंग एलिमेंट, ये जो मैंने अपनी ब्रांड बुक प्रेजेंट की, मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, और कुछ मैं एक दो और एग्जांपल दे के भी आपको ये समझाने की ट्राई करता हूँ। तो ये तो एक एग्जांपल थी जस्ट प्रोवन प्रॉपर्टीज की, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप एक और मैं अगर आप एग्जांपल दूं अगर, तो आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर आपके साथ, तो ये आप देख सकते हो एक बिजनेस नेम है यूनिक बिजनेसेस, ठीक है। इनकी कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और इस तरह से। तो इसके अंदर भी जो इनका मूड बोर्ड है, जो इनके स्केचेस थे वो यही थे कि यार इनका जो अपस्किलिंग जा रही है, इनका जो ग्राफ है वो ऊपर हो रहा है, और साथ साथ इनका जो यू का वर्ड था इनिशियली जो यू है उसके साथ साथ ये जो चाह रहे थे हमें लोगो बना के दिया जाए। तो एक आपके सामने है एक चीज, तो इसको आप देख सकते हो विद द शेड्स ऑफ टिंट्स ऑफ ब्लू। तो वो सब चीजें यूज करके फिर अगेन फॉन्ट्स और ये सब चीजें थोड़ी सी लेंथी हैं। So if the organizer got time for some other workshop, inshallah, I would love to explain all these things to you guys. ठीक है। इसके साथ साथ फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, जो कि होती है फ्रीलांसिंग, कि आपके पास आपने सीख ली, आपको सब चीज़ें ओके हो गई, आपने ग्राफिक डिज़ाइन बन गए हो, बट उस चीज़ को सेल आउट कैसे करना है, आपको अर्निंग कैसे लेकर आनी है। उसके लिए देखें, पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म यूज़ होते थे, फाइवर था, अपवर्क था, पीपल पर आर था, freelancer.com था, फिर उसके बाद एक दो और प्लेटफॉर्म से। बट अभी उन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो गई है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानीज, इंडियंस, बंगालीज, ऑल दी साउथ एशियन पीपल। लोग ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लो पेमेंट करते हैं आपको। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आई थिंक जो ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब स्टार्ट होती है वो एक स्टार्ट होती है 40,000 45,000 से, और वो चलती है ऊपर के नॉट मोर देन 2 lakhs, ठीक है। तो अब ये आजकल जो मार्केट रेट चल रहा है। तो बाकी जहाँ तक आई वुड लव टू सजेस्ट यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप करना होता है। आपने एक दफ़ा स्किल सीख लिया, आपको एटलीस्ट खुद को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए 1 साल का पोर्टफोलियो आपको चाहिए होता है। 1 साल का पोर्टफोलियो कितने टाइम में बनता है? 2-3 हफ्तों में। जस्ट आपने टूल सीख लिया, सब चीज़ें सीख लिया। सबसे आसान सोल्यूशन मैं अगर आपको बताऊं तो ये है कि लोगों की चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें। एक पोस्टर आपके सामने आया, ऑब्जर्व करें। एक लोगो आया, ऑब्जर्व करें, उसको रीडिज़ाइन करते हैं एज इट इज़, ठीक है। नाइकी है, अगर उसका टिक मार्क लोगो, तो आप जो नाइकी डाल के अपना नाम लिख दो, आप उसके ऊपर अपना नाम लिख दो। एक पोस्टर है, अगर आपके ऊपर आपके सामने कोई पोस्टर फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्टर आ रहा है, कोई ऐड चल रहा है, व्हाटएवर एक्सवाइज़ेड चीज़ है, उसको एज इट इज उठा के छाप दो, उसका कंटेंट चेंज कर दो, उसके ऊपर एबीसी लिख के तो आप एक्सवाइज़ी लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होने शुरू होते हैं। आप एकदम से कोई भी कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको पेमेंट नहीं करती अनटिल अनलेस कोई आपका पर्सनल सोर्सेज में से आपके पास प्रोजेक्ट निकल के आ रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग टू कीप इट इन माइंड इज दैट कि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। वो कैसे बिल्डअप करना है? टूल सीखना है आपको। टूल मीन्स फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आपको सीखना है। उसके बाद Pinterest.com, Dribbble.com, Behance.com, ये 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जहाँ पे आप लोग जाइए, लोगों के डिजाइन्स को देखिए, उसको छाप दीजिए। आपसे कोई बंदा नहीं पूछेगा कि यार ये आपका अपना है या किसका है। वन थिंग, कोई पूछता भी है तो ऑलरेडी आपके पास सोर्स फाइल एग्जिस्ट करती होगी इसकी, जो आप दिखा सकते हो। मुझसे आज तक किसी भी बंदे ने वो नहीं पूछा जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें के 5-6 साल में कि यार ये काम आपका अपना ही है किसका है।
ठीक है, स्टार्टिंग हमने भी ऐसी ही ली है, स्टार्टिंग हमने भी लोगों का काम देख उसको छापा, ठीक है, उसको एज इट इज चीजें बनाई हैं और उसको आगे क्लाइंट को प्रेजेंट किया है कि यार ये चीजें मैं बना सकता हूँ। अब एक बंदा एक फ्रेश है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कहाँ से वेबसाइट्स बना कर लाए आपके लिए, कहाँ से पोस्टर्स बना कर लाए, वो कहाँ से लोगोस बना कर लाए, उसके पास क्लाइंट ही नहीं है, ठीक है। तो जो फ्रेश बंदा है उसको आई वुड लव टू सजेस्ट कि आप Pinterest, Dribbble, Behance, तीन फॉलो करो, सर्च एनीथिंग यू वांट टू मेक, आइदर अ पोस्टर, बैनर, फ्लायर, वेबसाइट, लोगो, XYZ थिंग्स, बस उसको एज इट इज बना दो। आप इतना बनाओ कि अगर कोई बंदा 2-3 बार स्क्रॉल करता है ना आपकी प्रोफाइल को, तो वो आपका कंटेंट खत्म ना हो। अब बात समझ आ कि 20-30 पोस्टर्स बना लो, 5-6 लोगोस बना लो, 1-2 कंप्लीट प्रोफाइल्स बना लो, प्रेजेंटेशन डिजाइन इसके अंदर आती है, ब्रोशर्स आते हैं, फ्लायर्स आते हैं, देख के एज इट इज बना लीजिए बस। तो जब आपके पास इस तरह की चीजें होंगी ना, आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करो तो उसको ये ना बोलो कि मैं फ्रेश हूँ, उसको बोलो आई हैव अ 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसका जब हम पोर्टफोलियो प्रेजेंट करोगे जॉब में बनाया होगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार बंदे के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको जॉब के लिए काम आती हैं, और ये एक अलग से फिर से मैं एक आपको बोलूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हाउ टू हंट अ जॉब, प्रॉपर जॉब, ठीक है, आइदर अ फुल टाइम जॉब, अदर रिमोट जॉब, आइदर अ फ्रीलांस जॉब, ठीक है। उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाती है। बाकी बहुत से लोग ऐसे भी इनके पास 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस है बट उनके पास अभी भी जॉब नहीं है, अगर है तो बहुत ज़्यादा थोड़े पैसों की है, बहुत अच्छा स्किल उनके पास। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास स्किल बहुत लो है बट उनके पास बहुत अच्छी जॉब है। तो ये सब चीज़ें, एक बीइंग अ मुस्लिम, ये किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता कि आपको रिस्क प्रोवाइड करे, अल्लाह पाक का काम होता है। सो वही रिस्क आपको दे सकता है, एफर्ट आपके हाथ में है, बाकी प्रेयर, दुआ, नमाज आपके हाथ में है, बाकी जो रिस्क प्रोवाइड करना ही अल्लाह पाक के बस की बात है, ठीक है। तो आई थिंक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे आप बताइए, बट अगेन आई एम रियली सॉरी, आई हैव जस्ट अ टाइम ऑफ 45 मिनट्स, इसके अंदर मुझे कंक्लूड करना था ये सब चीज़ें। ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारी सब डोमेन्स बनती हैं, ब्रांडिंग और लोगो डिज़ाइनिंग और बहुत कुछ बनता है। आई वुड लव टू सजेस्ट यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन gfxmentor.com, ठीक है, जो यूट्यूब पे चैनल है, एटलीस्ट फोटोशॉप इंस्टॉल कीजिए, Adobe Illustrator इंस्टॉल कीजिए, आपके पास एक स्टैंडर्ड लैपटॉप में जो एक आम लैपटॉप होता है 4 GB रैम के साथ, उसके ऊपर चीज़ें चल जाती हैं इजीली, ठीक है। फिलहाल ये वो स्टेज नहीं है कि आप लोग एक्सपेंस करो, अम्मी को बोलो, अपने बहन भाइयों को बोलो यार आई वांट अ लैपटॉप, जब तक उसमें 50 GB रैम नहीं होगी, 50 LCD नहीं लगी होगी, तो उतने टाइम तक आपको स्टार्ट नहीं लेना। तो ऐसी वैसी बात नहीं है, आपके पास 4 GB रैम के साथ लैपटॉप है तो आप फोटोशॉप इंस्टॉल करें और स्लोली स्लोली GFX मेंटोर की वीडियोस देखिए, एक दो हल्का सा टूल सीखें, सिलेक्शन टूल सीखें, सिलेक्ट कैसे करते हैं चीज़ें। एक बात माइंड में रखें कि ट्राई करने से कभी लैपटॉप फटेगा नहीं आपका, ठीक है। स्टूडेंट समझते हैं कि यार हमने की रॉन्ग क्लिक कर दिया, डुज हो जाएगी जी, हमारा लैपटॉप फट जाएगा जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग सीखते ही नहीं है जब तक कोई मेंटोर या कोई इंस्ट्रक्टर हमें माउस पकड़ के समझाए नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। वन थिंग, यूट्यूब बेस्ट इंस्ट्रक्टर है वर्ल्ड में, उससे आप लोग सीखो। अगर नहीं समझ आती आपकी कोर्स आप ज्वाइन कर लो, उससे भी नहीं समझ आती फिर कहीं फिजिकल कोर्स ज्वाइन कर लें, फिर भी नहीं समझ आती तो फिर अपनी फील्ड स्विच कर लें, ठीक है। फिर यही हो सकता है। ये वो काम है कि जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है, ठीक है। ये चीज़ें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक बहुत कॉमन लाइन है, सुनी होगी आपने। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी सब चीज़ों पे तो आपका हाथ नहीं बैठ सकता। सेकेंडली, ये वो इंडस्ट्री है कि जो रोज़ के रोज़ इवॉल्व कर रही है, रोज़ के रोज़ एक न्यू थिंग्स इसके अंदर आ रही हैं, आई मीन एक न्यू वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एक न्यू वे ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन आप जिसको बोलते हो, ठीक है। बिकॉज जब आप फ्रीलांस मार्केट पे काम करते हो ना, आपके पास पूरे वर्ल्ड से क्लाइंट आता है, ठीक है। तो उन सबको आपकी एक्सपेक्टेशन मीट करनी होती है। सपोज इफ यू आर वर्किंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइंट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी चलती है, बिल्कुल सिंपल स्लीक डिजाइन चलते हैं बट एलिगेंट, ठीक है। जबकि अगर आप साउथ एशिया में चले जाओ, साउथ एशिया मीन्स इंडिया, बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे डिज़ाइन को भर दो। जब तक डिज़ाइन भरा हुआ नहीं होगा, पिक्चर्स ही पिक्चर्स, टेक्स्ट ही टेक्स्ट, लोगो ही लोगो, ये वो XYZ चीज़ें नहीं होंगी तो आपका डिज़ाइन क्लाइंट मानेंगे ही नहीं, कहेगा यार ये तो ये तुमने इस पोस्टर के 5,000 रुपये लिए कि जिसके ऊपर तुमने एफर्ट ही नहीं की। अब वो ये नहीं देखता कि क्लाइंट ने आपकी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ डिज़ाइन की है, ठीक है। तो अगर ये डिज़ाइन सिंपल है ना, तो आई थिंक सिंपल डिज़ाइन बनाना सबसे मुश्किल काम है। डिज़ाइन को मुश्किल बनाना ये सबसे आसान काम है। मुश्किल डिज़ाइन मीन्स कि आप भर दो उसको, ठीक है, विदाउट सोचे समझे, जो मर्जी फॉन्ट चढ़ता है लगा दो, जो मर्जी शेड चढ़ता है लगा दो, ये वो डिज़ाइन भरा हुआ है आपका, ठीक हो गया। तो आई थिंक वो चीज़ थोड़ी इजी है, सिंपल डिज़ाइन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आई डोंट नो बात कहाँ से कहाँ निकली। तो खैर एनीवेज,
If you have any questions, so if you let me know, I would love to answer. So मैं अभी क्वेश्चन कीजिए. सोबिया, आप पूछ लें अपना सवाल. Sir, could you please repeat the name of website that you shared before? Sumaya Larib, you can ask your questions now. ओके, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिए, मैं इंशाल्लाह आंसर करता हूँ एक साथ ही. एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप आंसर कर लेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने पोर्टफोलियो के बारे में कहा कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप 2 साल के एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे क्लाइंट हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जबकि अगर हमारा पोर्टफोलियो इतना क्रेडिबल नहीं है कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, या जैसे कि आपने कहा कि हम इधर उधर से डिज़ाइंस लेके हम इसको पूरा कर सकते हैं, बट क्या आपको नहीं लगता कि उसके ऊपर कॉपीराइट्स इशू आ सकते हैं और ये अच्छी बात नहीं है? लाइबा, आप अपना सवाल पूछ लें. सर, एक और क्वेश्चन है कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट को इस हवाले से जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? ओके, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस है बताइए. Fahad, thank you so much for answering my 2 questions. One more thing. Can you hear me, right? मेरी आवाज आ रही है? Sorry if I'm audible. Yes, you are. Okay, perfect. So one more question of mine is that let's say because I'm working in Pakistan के काफी एक renowned brand के लिए अभी currently I'm working out, and what they are doing is कि वो अपना जो brand है basically वो किसी और brand के साथ they are merging out into one thing. So जहाँ पे लोगों की बात आती है और like you know when you have that much fame and name also, और 2 brands आपस में merge होना चाहते हैं, तो what do you suggest at that part also? उस पे भी मुझे I would love to have your insights or your point of view on that also. So if you can encounter this, thank you. ओके, थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सोबिया का क्वेश्चन है कि वेबसाइट्स बता दें जहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं. तो यू कैन राइट इट getinto.pc.com, getinto.pc.com. ठीक है, तो अगर जो होस्ट है अगर वो चैट में टाइप कर दें तो सबके लिए इजी हो जाएगा. getinto.pc.com. Yeah, wait a second. तो वहाँ से जाके आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड है डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉलेशन वीडियो भी दी हुई होगी. सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, हम कैसे क्लाइंट को वो चीज़ें बता सकते हैं, कॉपीराइट इशू आएगा या नहीं आएगा, क्या ये अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात. ठीक है, वन थिंग. ओके, अच्छा, एक और उनका सवाल था कि हम लोग क्लाइंट कहाँ से ग्रैब कर सकते हैं और उसको हम कैसे इंगेज कर सकते हैं. के कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया है, फाइवर है, अपवर्क है, वगैरह वगैरह. तो वहाँ से तो आई थिंक इनिशियली विद द जीरो एक्सपीरियंस, विद द जीरो पोर्टफोलियो आपको कभी कोई क्लाइंट नहीं आएगा. आप खुद को सोचें, आपके पास कोई टास्क, आपके ब्रांड, आपको लोगो चाहिए, आपको पोस्टर ब्रोशर चाहिए, क्या आप एक ऐसे फ्रीलांसर को देंगी कि जिसका पोर्टफोलियो नहीं है बट वो क्लेम करता है कि उसको काम आता है और वो आपसे 10,000 चार्ज कर रहा है? क्या आप उसको देंगी? आप नहीं देंगी. आप उसको बोलेंगे भाई मुझे कुछ काम तो दिखाओ, तुमने क्या किया हुआ पहले. ठीक है, वन थिंग. सेकंड थिंग, इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता क्योंकि आपका काम जो है ना कहीं पे भी अपलोड नहीं होगा. मींस के वो किसी ऐसी मेन वेबसाइट पे अपलोड नहीं होगा जहाँ से आपको कोई कॉपीराइट क्लेम आ सके. क्लाइंट पोर्टफोलियो डिमांड करता है, पोर्टफोलियो होगा आपकी गूगल ड्राइव की किसी फोल्डर में पड़ा हुआ. ठीक है, आपके पास स्टोरेज होती है, गूगल ड्राइव होता है, वहाँ पे आप अपलोड कीजिए. ठीक है, वहाँ पे भी नहीं अपलोड करते. Behance एक ऐसी वेबसाइट है, behance.net, जहाँ पे लोग पोर्टफोलियोज ही सेट करते हैं. ठीक है, आईडी बनाइए behance.net पे. इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल, सॉरी अडोब का प्लेटफॉर्म है Behance. वहाँ पे आप लोग अपनी आईडी बनाइए, वहाँ पे जाके Can you please repeat? कौन सी चीज रिपीट करनी है? सर, ये कौन सी वेबसाइट का आपने नाम लिया? behance.net, BEHANCE, behance.net. ठीक है, इसके ऊपर जाके थोड़ा आप एक्सप्लोर कीजिए कि ये वेबसाइट है क्या. यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो डिजाइनर है ना, जो क्रिएटिव पर्सन है, उसका काम यहाँ पे पड़ा हुआ है. आइदर ही इज आर्किटेक्ट, आइदर ही इज अ वीडियोग्राफर, आइदर ही इज अ फोटोग्राफर, या
ग्राफिक डिजाइनर है, वेबसाइट का बंदा है, जो भी वट है, उसका काम यहाँ पे पढ़ाता है। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि हाउ दोज गाइस प्रेजेंट देयर वर्क। अच्छा, फिर उसके बाद कॉपीराइट क्लेम की बात की गई, तो कॉपीराइट क्लेम कभी भी आपके ऊपर नहीं आ सकता। जो मर्जी आप कर लें, कॉपीराइट क्लेम आपके नहीं आएगा। बेशक आप वही चीज बना दें जो पहले किसी बंदे ने बनाई हुई है, कभी आपके कॉपीराइट क्लेम आ ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म इतना भी एफिशिएंट नहीं है कि आपको एक और सर वो काइंडली सर जो आपने चैनल बताया ना यूट्यूब पर, काइंडली वो भी बता दीजिए। ओके, सो चैनल नेम इज जीएफएक्स मेंटोर। ठीक है, I have one question more. Can you hear me? सर आपने कहा कि आप जैसा मर्जी बना दें डिज़ाइन, जैसे कि पहले भी बना हुआ है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता। क्या मैं सही कह रही हूँ? आपने ऐसे ही बोला। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो जो डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है, क्लाइंट हमें उस चीज़ के पेमेंट क्यों करेगा जबकि वो तो ऑलरेडी बना हुआ है? उन्हें तो यूनिक चीज़ चाहिए। हम डिज़ाइनर किस चीज़ के, अगर हम यूनिक चीज़ क्रिएट नहीं करके दे सकते, सो हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक फील्ड आती है वो कहाँ से आएगी? और सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर हमें किसी दूसरे का ही डिज़ाइन चोरी करके देना है, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट नो ऑफेंस, लेकिन अगर हमें डिज़ाइन चोरी करके ही देना है, सो आर यू श्योर कि हम इस पेमेंट के लिए, उस डिज़ाइन की पेमेंट के लिए इस काबिल हैं कि हमें वो पेमेंट दी जाए? ओके, वन थिंग आपके था कि डिजाइन, आई एम सॉरी मैं भूल गया आपका क्वेश्चन। क्या फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं प्लीज? श्योर, आई कैन रिपीट माय क्वेश्चन। आपने कहा कि अगर आपने डिज़ाइन वहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी का पड़ा हुआ है, और अगर हम वो यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट इश्यूज नहीं आते। ओके वेट, हाँ ऐसा है कि डिजाइन पड़ा हुआ है, आपने उठा के उसको बना दिया है अपनी पिक्चर्स यूज करके, उसके ऊपर अपना कंटेंट वगैरह लिख के, तो ये आपके ऊपर कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। बिकॉज एक उसकी मैं चलो एक आपको एक प्रूफ और देता हूँ कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो टेम्पलेट बेस्ड वर्क करती हैं। freepik.com आप लोग सर्च कीजिएगा, फ्री PIK पिक, नॉट PIC, freepik.com, invertoelements.com, इस टाइप की freepsts.com, इस तरह की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट मीन की एक ओवरऑल लेआउट बना हुआ होता है, ओवरऑल डिजाइन बना होता है, यू जस्ट हैव टू चेंज द टेक्स्ट, इमेज, वेबसाइट नेम एक्सेट्रा, लोगो शोगो, डिजाइन कंप्लीट। वो प्लेटफॉर्म है ही इसीलिए कि आप उनकी टेम्पलेट्स को यूज करके और आगे अपना काम चला सको। लेकिन अब टेम्पलेट के साथ कैसे प्ले करना है, कि टेम्पलेट 100% कॉपी करनी है, 90% करनी है, 50% करनी है, अगेन इट्स अ प्रोसेस ऑफ पोस्टर क्रिएशन। तो पोस्टर क्रिएशन का अगर कभी टॉपिक हुआ तो उसमें इंशाल्लाह आई टेल यू। तो अब ये बात है। सेकंड थिंग कि डिजाइन चोरी करके अगले को देना और अगले को बताना कि डिजाइन मेरा है, ये है, वो है, आई एग्री विद यू। अब इसमें एक बात है कि जो मैं आपको डिजाइन कॉपी करने की बात कर रहा हूँ, इट इज जस्ट टू प्रेजेंट द क्लाइंट कि ये मेरा एक्स पोर्टफोलियो है, मेरा प्रीवियस पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया हुआ है अपने हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए। एक होता है टर्म कि जो आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, एक होता है जो आप हॉबी प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हॉबी प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जो आप अपनी इंस्पायरेशन के लिए, अपनी स्किल को मजीद इम्प्रूव पॉलिश करने के लिए आप हॉबी प्रोजेक्ट्स करते हो। इफ यू आर इनफ क्रिएटिव कि आप अपना डिजाइन बना सकते हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं बना सकते हो, 1 minute sir, 1 minute, I'm sorry to cut off your talking about this, but मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी का देते हैं डिज़ाइन, जैसे कि आपने कहा कि टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, या हम किसी कंपनी का उठा के देंगे और क्लाइंट को ये बोलेंगे कि ये मेरा एक्स पोर्टफोलियो से काम लिया गया है, अगर वही कंपनी का डिज़ाइन वो क्लाइंट अप्रोच करे तो आपको नहीं लगता कि वो हमें अप्रोच करने के बाद क्या कुछ बोलेगा? और दूसरी चीज़ ये कि किसी का काम हम अपना एक्स पोर्टफोलियो के तौर पे कैसे दिखा सकते हैं, जबकि हमारा पॉइंट ये है कि हमें क्रिएटिविटी कैसे सीखनी है ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हमें इसी तरह काम उठा के देना है तो एडोब फोटोशॉप के अंदर और कैनवा डिज़ाइनर के अंदर क्या डिफरेंस रह जाएगा? ऐसे तो कोई छोटा बच्चा भी उठा के टेम्पलेट यूज़ करके डिज़ाइन बना सकता है। आपको नहीं लगता कि हमें क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए उसके लिए मजीद आइडियाज की जरूरत है? अच्छा, वन थिंग कि आपका So I have one more question. Could you please explain briefly about portfolio? सॉरी, आपने कौन सी चीज पूछी? Could you please briefly explain portfolio? पोर्टफोलियो क्या होता है? अच्छा, पोर्टफोलियो आपका होता है कि जो आपका काम होता है, ठीक है, तो आपका जो भी अभी तक काम किया हुआ है प्रीवियसली, 1 साल में, 1 महीने में, 1 दिन में,
चाहे वो जो भी आपका काम है उसको हम बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जहाँ पे सीवी काम आती है जॉब गेन करने के लिए, प्रोजेक्ट गेन करने के लिए। कुछ फील्ड्स होती है जहाँ पे पोर्टफोलियो काम आता है। तो जो हमारी क्रिएटिव डोमेन है इसमें आपका पोर्टफोलियो काम आता है आपको जॉब या वो सब चीजें गेन करने के लिए। आपसे कोई भी बंदा नहीं पूछेगा यार आर यू इंजीनियर, तो आप ये जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, बल्कि आपसे ये पूछेंगे यार आप जो मर्जी हो लेकिन अपना पहले वाला मुझे काम दिखाओ कि आपको कितना आता है, तो उस बेसिस पे मैं तुम्हें प्रोजेक्ट अवार्ड करूंगा। तो ये होता है पोर्टफोलियो। बाकी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो जो यूट्यूब का आपने चैनल बताया वो दोबारा बताएंगे? सॉरी टू कट यू ऑल, प्लीज अपनी बारी पे सवाल पूछें। एक जब फहद जवाब दे रहे हैं तो प्लीज बीच में कट ऑफ ना करें। वेट फॉर योर टर्न एवरीबॉडी। नाउ फहद, ओवर टू यू। Okay, so the channel name is GFX Mentor. इमरान अली दीना इंस्ट्रक्टर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 इंस्ट्रक्टर हैं इन टर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइन, इन टर्म ऑफ एडोब। सो उनसे अच्छा उस्ताद मुझे नहीं लगता कि कोई भी हो जो आपको टूल सिखा सके, ठीक है। तो यू कैन फॉलो हिम, यू कैन वॉच द वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको चेक करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाएंगे। तो बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, आई थिंक अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं, तो अगेन मैं उनका आई डोंट नो नाम क्या था उनका, आता हूँ बैक टू देयर कि यार कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, वो सब चीज़ हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्पलेट कॉपी करना और 100% कॉपी करना, 50% कॉपी करना, मैंने आपको वही चीज़ बोली है कि ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। टेम्पलेट में से हो सकता है आपको कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स अच्छे लग रहे हो जो सिर्फ जस्ट आप एलिमेंट पिक करके अपने पोस्टर पे लगा दो। ये बैक पे एक फ्रेम आपको जो है ना ये दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर ये देखा ये हुक्का जो इसके ऊपर शेप आ रही है। अब क्या अगर मैं आपको ये बोलूं यार मुझे फ्रेम ऐसी बना कर दो, हुक्का आ रहा हो, तो क्या आप इसको एज इट इज उठा के मुझे दे दोगे? ऐसा थोड़ी है। आप इसका बैकग्राउंड को स्लाइटली इसका चेंज करोगे, जो साइड पे जो बॉर्डर आ रहा है वो आप चेंज करोगे, कुछ अपने स्लोली स्लाइटली एलिमेंट्स ऐड करोगे, इसमें से एक दो हुक्का उठा के अपने उसके ऊपर पेस्ट करके आप दे दोगे। ये सब एलिमेंट्स होते हैं, उनको कॉपी करना नहीं कहते, ठीक है। कॉपी वो होता है जो 100% कॉपी करो आप। यही फ्रेम आप उठा के अगले को दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार इट्स माय डिजाइन, वो कॉपी है, अनएथिकल है, अगेन वो अच्छी बात नहीं है। कैनवा भी आपको इस चीज के ऊपर कभी नहीं कहता कि यार 100% टेम्पलेट कॉपी करो। टेम्पलेट का मकसद क्या होता है कि आप कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स पिक करके अपने डिजाइन के ऊपर पेस्ट करके तो अपना डिजाइन को कंप्लीट करते हो, ठीक है। फ्री पिक अगर आप चेक करो तो उसके ऊपर आपको मोस्टली 80% जो चीजें मिलती हैं एलिमेंट्स मिलते हैं। फ्लैग मिल गया, बॉल मिल गई अगर आप बॉल को यूज कर रहे हो, या और कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया, या कोई गोल्डन कॉइन्स मिल गए, नोट करेंसी नोट्स मिल गए आपको, या और कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको पोस्टर के अंदर चाहिए, आप फ्री पिक से वो एलिमेंट डाउनलोड करके अपने पोस्टर पे चिपका के उसके साथ शेड्स वगैरह अप्लाई करके तो अपना काम चला सकते हो। तो ये एसेट्स वाली वेबसाइट जो होती हैं इनको इस वे में यूज किया जाता है, ना कि 100% आप कॉपी करके दो। यस, अगेन उनका क्वेश्चन कि अगर क्लाइंट देख लेगा किसी और वेबसाइट पे तो ऑफ कोर्स तो अनएथिकल बात है, ठीक है। मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि जस्ट अपने पोर्टफोलियो के लिए आप एज अ इंस्पायरेशन लेते हो। इंस्पायरेशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सब काम कॉपी करते हो। कॉपी करो, एक हद तक करो, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो। क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी आपके अंदर? फर्स्ट थिंग आपकी थॉट, सेकंड थिंग लोगों का काम देख के, जो इस इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, उनको फॉलो करके, उनका काम देख के कि यार आजकल वो फलाना जो बंदा है या फलाना डिजाइनर है, फलाना कंपनी के डिजाइन में ये चीज नहीं फॉलो हो रही है, फॉन्ट्स कुछ ऐसे ऐसे आजकल यूज हो रहे हैं, तो मैं अपने डिजाइन में उस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ, एडप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। उठा के आगे दे देना इट्स नॉट इंस्पिरेशन, ठीक है। अगेन जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि इनिशियली अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने के लिए आपको लोगों का काम देख के जिसका काम आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। सेम बनाओगे, आपके टूल के ऊपर आपका टूल इम्प्रूव होगा। आइदर फोटोशॉप पे कर रहे हो, इलस्ट्रेटर पे कर रहे हो, आपका टूल थोड़ा इम्प्रूव होगा। सपोज कि फोटो मैनिपुलेशन में बहुत सारे पिक्चर्स ऊपर नीचे लगे हैं, मैं अगेन इसी फ्रेम की एग्जांपल लेता हूँ, ये देख लो हुक्कास बहुत सारे ऊपर नीचे लगे हैं, ठीक है। अब इन हुक्कास कहाँ से आएंगे आपके पास? ये ऊपर नीचे की प्लेसमेंट जो है कहाँ से होगी? टूल तो आपने सीख ली है, लेकिन ये चीज बनानी है अब आपको। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इंस्पायरेशन लीजिए, उस तरह की चीज बनाने की कोशिश कीजिए, जस्ट टू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी, योर टूल, ठीक है। चीज तो बना लिया आपने, आप क्लाइंट को भी बता सकते हो कि यार ये चीज मैंने ट्राई की थी, मुझे टूल के ऊपर ग्रिप है। क्लाइंट को जस्ट ये चीज प्रेजेंट करनी होती है, सही है। क्रिएटिविटी आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कभी भी आप रातों रात या हफ्ते बाद या महीने बाद क्रिएटिव पर्सन नहीं बन सकते।
और ये डोमेन ही ऐसी कि जिसमें आई थिंक इन्फिनिटी टाइम रिक्वायर्ड है आपका। हम खुद अभी तक सीख रहे हैं और मैं खुद को नहीं समझता कि, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुझे जो है ना 20% नहीं या 10% भी अभी चीज़ें नहीं पता, क्योंकि इतनी ह्यूज इंडस्ट्री मैंने आपको बताया 107 110 इसकी सब डोमेन्स हैं, तो आप कितनी चीज़ों को टारगेट करोगे एट ए टाइम। ओके, तो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो बताइए। Bilal, now you may ask your question. शकील अहमद, आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, फहद आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम लिसनिंग यू शकील। अच्छा, मेरा ना ये क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैं इंस्पिरेशन के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी 3 तरह की होती है। एक तो ये है जो आप स्क्रैच से करते हैं, जो आपका सोल होता है कि यार ये मेरा डिज़ाइन है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। सेकंड थिंग इज़ कि यार आपने किसी का काम देखा, ठीक है, और उसको आप कहते हो कि यार मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो थर्ड है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, आपने 3-4 बंदों का काम देखा, उनको मर्ज किया, थोड़ी सी बीच में क्रिएटिविटी डाली और जो है ना आपने एक डिज़ाइन प्रेजेंट कर दिया, और मोस्टली यही यूज़ होता है। तो आई थिंक जो सिस्टर ने वो क्वेश्चन किया था कि यार कॉपीराइट और ये वो, उनको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने एक टर्म यूज़ की इंस्पिरेशन के लिए। तो इंस्पिरेशन का यही मतलब होता है कि आपको जो एलिमेंट अच्छा लग रहा है उसमें से आप उसके साथ प्ले कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग के लिए। आयशा, आई थिंक अगेन मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि अभी भाई ने कहा कि मर्ज करने के बाद एक डिज़ाइन बन जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मेरा आंसर किया, मैंने उसको सुनते हुए आपका रिसर्च किया आपके बारे में। सो ट्रायन इंस्टीट्यूट जैसे कि आप कह सकते हैं, और ट्रायन डिजिटल, इसके डिज़ाइन देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि किसी और का डिज़ाइन किया हुआ है। नो ऑफेंस, बट जैसे कि ट्रेंड चल पड़ा है कि हम मर्ज करने के बाद कर देते हैं, लेकिन इन सब में हमारी ब्रांड आइडेंटिटी कहाँ है जो कि हमें क्रिएटिव बनाती है इनफैक्ट। और अगर हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर हम ऐसे करें कि 3-4 लोगों का इंस्पिरेशन के नाम पे डिज़ाइन उठाएं और उनको मर्ज करने के बाद अपना डिज़ाइन बना दें और उसको अपने पोर्टफोलियो में एंटर करते हुए हम ये कहें कि ये हमारा ब्रांड है, सो ये ट्रेंड होगा, लेकिन ये एथिकल नहीं है। और सबसे मेन चीज़ कि हमें ये कॉपी करना सिखाता है, हमें क्रिएटिव बनाना नहीं सिखाता। काइंडली आप वो पॉइंट बताएं जो हमें क्रिएटिव बनाए। आपने पहले मुझे कहा, आई एम सॉरी मेरा क्वेश्चन ज़रा लंबा हो रहा है, डोंट माइंड, बट आपने जैसे पहले कहा कि फ्री पिक से आप एलिमेंट्स उठाएं। क्या हम इतना कैपेबल नहीं है कि एलिमेंट भी खुद बनाएं? प्लीज़ ये मत कीजिएगा कि टाइम शॉर्टेज की वजह से, लेकिन हमें क्रिएटिव बनना है, हमें अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है जिससे हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा क्रिएटिव नजर आए क्लाइंट को, ताकि वो हमारा काम देखे और उसे अच्छा लगे कि ये यूनिक है। सो काइंडली इसके बारे में बताएं। ओके, सो एक आपका एक सवाल था कि फ्री पिक से हम एलिमेंट नहीं उठाएं, खुद बनाएं। ठीक है, जब एक चीज़ फ्री में अवेलेबल है आपके पास 3D 2D एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपको खुद बनाने की ज़रूरत क्या है? मतलब एक बॉल है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, फुटबॉल पड़ा हुआ है कहीं पे स्टेडियम में, प्रॉपर एक इमेज है, प्रॉपर एक फोटोग्राफी हुई है, उसे जस्ट आपने फुटबॉल पिक करके अपने डिज़ाइन पे पेस्ट करना है। तो वो आप उसको स्क्रैच से खुद बनाने के लिए अगर आप इतनी एफर्ट लगा रही हैं, तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ स्मार्ट वर्क। ठीक है, एक चीज़। सेकेंडली, जो ट्रायन की आपने बात की है, ट्रायन का इफ यू सी कि उसमें से बहुत सारे एलिमेंट फ्री पिक से पिक्ड हैं। ठीक है, डिज़ाइन लेआउट आई थिंक सो कि उनका अपना होगा, बट जहाँ तक जो मैंने देखा उसमें से बहुत सारे एलिमेंट फ्री पिक से पिक करके उनको अरेंज करके और आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। आयशा, जो आप बात कर रही हैं, आई थिंक कि एक जो पर्सन जिसको 5-6 साल एक्सपीरियंस है, अगर वो इस तरह का काम करे तो उसके लिए वो अनएथिकल होगा। बट जो एक बंदा भी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है, सब लोग इक्वल नहीं होते, ऑफ कोर्स सबका एक प्रोसेस होता है, एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, एक वे ऑफ डिजाइन होता है। तो जब आई मीन कि एक इनिशियल बंदा जिसका 6 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि भी वो टूल सीख रहा है, वो कैसे एकदम इतनी फोटो मैनिपुलेटेड चीज है जो बिल्कुल स्क्रैच से जो काम हो वो, या जस्ट अपनी क्रिएटिविटी उसके ऊपर जा सकता है। क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट अकेडमी नहीं सिखाएगा, ठीक है, और ना कोई सिखा सकता है, क्योंकि एक पर्सनल एक बंदे के अंदर वो एक चीज होती है। एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एग्जांपल ले रहा है, आपके पास कुछ पेंट्स हैं या कुछ ब्रशेस हैं, वो क्या आपका इंस्ट्रक्टर ये बताएगा यार इस पेंट को ऐसे 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 आप लगाओगे, आपके पास एक बहुत अच्छी चीज बन के आ जाएगी। वो कुछ उसके आपके टूल्स या उसके बेसिक्स आपको सिखा सकता है। सेम जैसे मैं अगर इंजीनियरिंग की एग्जांपल लूँ, तो इंजीनियरिंग आपको 4 साल डिग्री में कभी ये नहीं सिखाती कि आपने इंडस्ट्री में जाके कौन सा काम करना है। हमें तो आता ये नहीं समझ आई कि जो मैथ होती है वो कहाँ इम्प्लीमेंट होती है,
उसकी जो इक्वेशंस होती हैं कंप्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन जो है आपकी कि एक अपनी क्रिएटिविटी, अपना डिजाइन, उसको बोलते हैं हम आर्ट्स डायरेक्टर, ठीक है। वो उस लेवल पे बनता है जब बंदा 4-5-6 साल का प्योरली मार्केटिंग एजेंसी के साथ या और किसी फील्ड में रह के बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करके उस चीज को अडॉप्ट करता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग वो कह सकते हैं कि यार ये इसका अपना डिजाइन है, ही इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, उसके अंदर 3-4 लोगों की टीम उनको गाइड करता है कि ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, मुझे ऐसे से बनाना है, और प्रोसेस होता है। तो उसके बाद वो चीज़ें इवॉल्व होकर सामने आती है। बट एक जो बंदा जो भी सिर्फ टूल सीख रहा है, उसको टूल्स के ऊपर कैसे उसको अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो कैसे उसको अपना टूल के ऊपर ग्रिप करनी है, ठीक है। उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स उसको कुछ टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसको रिक्वायर्ड सब ले करके अपना काम स्टार्ट लेके एटलीस्ट, राइट। अगर और भी क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। आई थिंक ये टाइम बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है, तो इस चीज को क्लोज करना है। मे आई अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर इंटरप्शन के जैसे कि सिस्टर कह रही थी, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हम एज अ ड्रेस डिज़ाइनर या फिर हम एज अ पेंटर वर्क करते हैं तो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों के काम को देख देख के उनको बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज माइक थोड़ा चेक कर लीजिएगा। I'm sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही। If you have any other questions, so please let me know. Then inshallah after that we'll close the session. If you have any query, तो आप अपने host को बता दीजिए, तो inshallah we'll arrange some other session on some other day. तो उसके अंदर भी हम लोग इन सब चीज़ों को address कर सकते हैं। तो I think जो मेरा purpose था वो यही था कि यार मैं आपको verbally जितनी चीज़ें communicate कर सकूँ without any slides, because slide के ऊपर तो वही चीज़ें होती हैं कि ये XYZ चीज़ है। तो वर्बली बंदा एक अपने फ्लो में जिस तरह बात करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेट नहीं की जा रही होती, बट हो जाती हैं सही प्रॉपरली। तो आई ट्राई टू बेस्ट माई deliver the things, but if you are still any query, so inshallah you can take my number from the host, or you can take my email address, you can take my IDs, whatever you want to discuss about the project or any other query regarding design or any workshop. So I'm open to discuss everything with you guys. So secondly, we are not selling any course. Again, I am a volunteer for this workshop. ठीक है, मुझे नहीं पता कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो अकेडमी है, वो क्या कोर्स सेल आउट करी, क्या कह रही है। आई एम जस्ट इनवाइटेड हियर टू जस्ट फॉर द टॉक विद यू गाइस ऑन रैंडम फ्यू थिंग्स अबाउट द ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैंने आपको ये बोली कि इफ यू वांट टू लर्न, वो यूट्यूब सबसे बेस्ट जगह है वो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आती तो वो कोई वर्चुअल कोई देख लें कोर्स वगैरह, जो कोर्सेरा पे या और कहीं भी। अगर फिर भी नहीं समझ आती फिर कोई फिजिकल अकेडमी ज्वाइन कर लें। तो इसलिए बाकी एस्थेटिक्स, क्रिएटिविटी, आई थिंक के मैंने उनको भी हल्का हल्का हाईलाइट किया। सो ये सब चीज़ें। सो बैक टू द होस्ट, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, अगेन you can take my number, my email address, my whatever you want from the host, and inshallah she'll guide you the best. Thank you. Thank you so much. Now Noor Fatma will announce something. आइट्स कोर्स इशू करी वो अनाउंस कर रही है ट्राइन इंस्टीट्यूट। इफ एनीवन इंटरेस्टेड तो वो उनसे हारिस से रब्ता कर लें। एंड सेकंड थिंग, ये जो सेशन था इसका सर्टिफिकेट्स के लिए आप हारिस आजम से कांटेक्ट कर लें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। Thank you so much, Noor. And in the end, thank you so much, Fahad. Your insights were indeed highly valuable, and I hope all of the participants found this session really beneficial. Thank you for being part of. I'm sorry if I interrupted you. Actually, ऐसा है कि again I would like to close the session with the words कि जिस भी कैंडिडेट को अभी जो भी हमारे साथ लोग हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। I would like to answer that query, ठीक है। Yeah, so sure. and secondly, डिजाइन पर्सपेक्टिव एंड फॉर अदर थिंग्स, जो भी आप अपनी डोमेन स्टार्ट करना चाह रहे हो अगर इस चीज़ में, तो फर्स्ट थिंग कि क्या आप इस चीज़ के लिए सूटेबल हो या नहीं। ये चीज़ आपको कौन बताएगी? यूट्यूब इज द बेस्ट। हल्का से जाके सर्च आउट कीजिएगा, हाउ टू लर्न ग्राफिक डिजाइन, एक्सवाइजी थिंग्स, फोटोशॉप को थोड़ा एक्सप्लोर करें, वेबसाइट्स वगैरह को देखें, लोगों से इंस्पायरेशन लें, बिहेंस, ट्रिबल वगैरह खोलें। अगर आपको थोड़ा विजुअल्स में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ना, कि इफ़ यू वांट टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बाय यूजिंग विजुअल्स, कलर, शेड, फॉर्म्स, पिक्चर्स, एक्सवाइजी चीज़ें, तो फिर आप इस चीज़ में डीप डाइव करो। वन थिंग कीप इट इन माइंड, दिस फील्ड इज वेरी सैचुरेटेड।
इस चीज में अगर स्टैंड आउट करना है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा एस्थेटिक सेंस आपको रिक्वायर्ड होगी. ओके, सो इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट, no one can deny it. So yeah, thank you so much for your guys for your time, and inshallah hoping for the best. See you guys. Thank you. For your time. Much. Thank you. Now everyone can leave. Thank you, everyone. Okay, thank you. Thank you.